کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں ممبر پریس کلب کبیر والا حفیظ الرحمان فاروقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ میں ملتمس ہوں صدر پریس کلب کبیر والا سید فاروق رضا ترندی صاحب سے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات دیں۔ رحیم، تمام تعریفیں ہیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہے محمد و آخر الزمان نبی محترم سرکار دو عالم کی ذات اقدس پر اور ان کی آل پر جو ہمارے لیے ہادی اور رہنما بن کر ہے۔ انتہائی واجب الاحترام جناب سید حسین جہانیہ گردیوی صاحب اور اس ہال میں موجود میں معزز ممبران پریس کلب اور دیگر مہمان گرامی، سب سے پہلے تو سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پریس کلب میں۔ آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے عزت بخشی۔ آج یقیناً ہمارے دوستوں کو ایک بار پھر موقع ملے گا کہ وہ آپ کے خیالات سے آگاہ ہوں اور اپنے سوال و جواب کے ذریعے اور ان تمام موضوعات پر آپ سے گفتگو کریں جو سوال عوام کی زبان پر بھی ہیں اور میڈیا کرنا چاہتا ہے۔ میں دوستوں کو بتا چلوں کہ جناب حسین جہاں گردیزی کا کبیر والا کی صحافت یا پریس کلب کے ساتھ بہت پرانا رشتہ اور تعلق موجود ہے۔ کبیر والا میں جب یہ پریس کلب کی یہ عمارت موجود نہیں تھی اور اس وقت بالکل ہم ایک بے عمارت پریس کلب ہمارے پاس موجود تھا اور میاں صاحب کو اللہ نے اس وقت وزارت سے نوازا تھا، تو الحمدللہ جو پہلی گرانٹ کبیر والا پریس کلب کو 25,000 روپے مبلغ کی آئی تھی وہ جناب حسین جناب گردیزی صاحب نے دی، جس کی بنیاد پہ ہم نے غلہ منڈی کے اندر ایک پریس کلب اسٹیبلش کیا تھا۔ یہ 2004-5 کی بات کر رہے ہیں اور اسٹیبلش کیا تھا، اور پھر وہاں پر نثار سید مرحوم جنرل سیکرٹری تھے، میاں فیصل صدر تھے، اور وہاں بھی اس طرح آج ہم یہ میٹ دی پریس کر رہے ہیں، وہاں بھی بہت سارے پروگرام ہوئے تھے۔ اس کے بعد میاں صاحب ایک طویل عرصہ تک پریس کلب کے جتنے ہمارے تقریب حلف برداری کے پروگرام ہوتے تھے ان میں ہمارے مہمان خاص کے طور پر تشریف لاتے تھے، اور ایک بار جب یہ یہاں موجود نہیں تھے، فیصل آباد تھے مجبوریوں پر، تو انہوں نے اور دوستوں کو میاں صاحب نے ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن پریس کلب کے پاس ایک کنال اراضی ہمارے پاس آج بھی ہمارے نام سے محکمہ مال کے اندر موجود ہے، کبیر پبلک اسکول کے ساتھ جہاں ہماری 4 دیواری موجود ہے، گیٹ لگا ہوا ہے۔ وہ جگہ بھی جب وہ جگہ لی گئی تھی تحصیل جو کمپلیکس بن رہا تھا اور تمام، تو میاں صاحب نے اس وقت وہاں یہ کہہ کے جگہ رکھا تھی کہ یہ ایک کنال آپ کبیر والا پریس کلب کے لیے مختص کر جگہ، وہ جگہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے زیر قبضہ بھی ہے، پریس کلب کے زیر قبضہ بھی ہے۔ اگر ہمیں کبھی وقت حالات نے ہمیں اتنی گنجائش دی اور ہمارے پہ اتنے وسائل ہوئے تو ہم وہاں پر ایک بڑی عمارت یا ایک بڑا پریس کلب بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں کبیر والا واقعتاً اسی نہج پر ترقی کرے جس پر یہاں کے لوگ سوچتے ہیں، اور یہاں پہ سے لوگ اس میں بہتر رول پلے کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ صدر صاحب، ایک بات کہنا چاہوں گا، اپنے میاں صاحب کی کارکردگی اور پریس کلب کے حوالے سے بات۔ جناب صدر پریس کلب، جنرل سیکرٹری، دیگر ممبران و عہدیداران پریس کلب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور مجھے کافی عرصے بعد پریس کلب کبیر والا میں بات کرنے یا انٹریکٹ کرنے کا ایک موقع مہیا کیا۔ میں اس کے لیے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔
और इसके साथ जो बात मैं इब्तदा जो करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त हमारा मुल्क तारीख बना लो तस्वीर के मोड़ साढ़े माशाल्लाह मन तक नजर कैसा नहीं पई इस वक्त हमारा मुल्क जिन हालात से दो चार है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और दो संगीन किस्म के क्राइसिस इस मुल्क में इस वक्त चल रहे हैं। एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, या मैं कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो आपको पता है कि अभी जो हालात हैं, पाकिस्तान के दो सूबों की असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं और आइन हमारा ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब कराए जाएं, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने वो 90 दिन का आइनी कदखन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले को नज़रअंदाज करके आगे की तारीख दे दी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वो आइन की को अपहोल्ड करने की या आइन की पासदारी की लिए अपना फैसला सादर फरमाया है। मैं दुआ करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हो जाए और हमारा मुल्क आइनी क्राइसिस से निकल आए। और दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत चेंज हुई उसके बाद इस किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस आया कि वो हर आने वाला दिन बद से बदतर की तरफ जा रहा है। इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पाकिस्तानी रुपए की कदर बतदरीज घटती जा रही है। और इन हालात में जो है मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मज़ीद बढ़ गई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अगर पाकिस्तान में इस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट जिसके पास एक फ्रेश मैंडेट हो उसके क़याम की तरफ आए, उसके नतीजे में हम इन पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं। और जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है, वो शायद फिर एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट से नेगोशिएट करके वो पाकिस्तान के लिए कोई पैकेज का ऐलान करें जिससे इन क्राइसिस का से बचा जा सके। और इनके साथ साथ चूँकि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे इस वक्त पाकिस्तान में वो
किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज नहीं दे रहे, तो इसी की वजह से लोग कहते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, जो एक संगीन सूरत हाल होगी। और कुछ एक सियासी लीडर की स्टेटमेंट पे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट तो होते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं दिल में सोच रहा था कि काश वो कभी ये भी कह दें कि मेरी जो दौलत है उसमें भी कमी बेशी होती रहती है, वो तो बतदरीज बढ़ती जा रही है, उसमें तो कमी वो बर्दाश्त नहीं करते। और दुनिया का अब पता नहीं कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ उनके एहसास न हो। खैर, हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या उससे भी नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे पास चूँकि पाकिस्तान के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, मुल्क माशी तौर पे महफूज हो। अगर माशी तौर पे महफूज होगा तो मुल्क की सरहदें भी महफूज होंगी। और हमारे पास इस मुल्क में रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिन लोगों की मैंने अभी जिक्र किया, उन लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर खुदा न खास्ता हमारे मुल्क को कुछ होता है तो उन लोगों ने तो ऑलरेडी वीज़े उनके पासपोर्टों पे लगे हुए हैं, उनकी ब्रीफ केस में टिकटें पड़ी हुई हैं और उन्होंने तो मुल्क से बाहर चले जाना है। और हम लोग भी उन हालात से दो चार होंगे। लिहाजा हमें इस वक्त, मैं समझता हूँ, आइन की पासदारी के लिए एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए और प्रेस जो स्टेट के 4 सतूनों में से एक सतून है, इसको चाहे किसी बड़े शहर का प्रेस क्लब हो या किसी छोटे तहसील लेवल पे या उससे छोटे किसी कस्बे के लेवल पे प्रेस क्लब हो, उसको वो ये हालात के तहत आइन की पासदारी के लिए एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए। और मैं तवक्को करता हूँ कि फिर कबीर वाला की प्रेस भी आइन की पासदारी के लिए अपना एक फर्म स्टैंड रखती होगी। अगर आइन की पासदारी होगी तो फिर हम माशी मुश्किलात को भी ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और हम इससे अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। मैं ज़्यादा तफसीली बात नहीं करना चाहता, लेकिन 2-3 बातें जो मैं करना चाहता हूँ, जो लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं और करनी चाहिए, वो ये है कि सन 70 में चीन
साउथ कोरिया और पाकिस्तान की फीकस आमदनी बराबर थी। आज पाकिस्तान की फीकस आमदनी के मुकाबले में चीन की फीकस आमदनी 750 गुना ज़्यादा है, 750 गुना ज़्यादा है। ये नहीं कि 750%, 750 गुना ज़्यादा है। और जनूबी कोरिया की फीकस आमदनी 12,000 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान से। और ये जनूबी कोरिया वो मुल्क है जो अवाइल ज़माने में पाकिस्तान के पास उनके माशियात के माहिर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें सिखाएं कि आपने 5 साला मंसूबा कैसे बनाया है, उसमें तरजीहात क्या तय की हैं, और वो हमसे सीख के गए थे और आज उन्होंने मुल्क के लिए मेहनत की है और मुल्क को संभाला है। लेकिन उसके मुकाबले में हम अपनी ज़ातों को, अपनी शख्सी दौलत को बढ़ाने में लगे रहे हैं और मुल्क के बारे में हमने नहीं सोचा। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क के बारे में सोचें और यहाँ एक मुआशी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम के लिए कोशिश। मैं एक और बात भी सरे राह मेरे ज़हन में आ गई, मैं वो भी करता हूँ। हम बचपन में सुनते थे कि पाकिस्तान की जो एयरलाइन है PIA, वो दुनिया की 3 बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। और हम ये भी सुनते थे उस पाबंदी को ख़त्म करा के अपने साबका टेन्योर में भी जो दरियाई बेल्ट है, जो दूर इफ्तादा इलाका है, वहाँ बुनियादी हेल्थ यूनिट का क़याम कराया है और वो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फंक्शनल हो जाएंगे। यहाँ इसके साथ साथ मैं ये भी समझता था कि सिर्फ तालीम एक सेहतमंद ज़हन की अक्कासी नहीं करती, लेकिन उसके लिए तरबियत और खेल के मैदान भी ज़रूरी है। वो हमारी कबीरवाला की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट सरकारी ज़मीन का ना होना है, जिसके लिए माजी में भी मैंने 2 मुरब्बे ज़मीन कंबो फैमिली से कबीरवाला में लेके आनेवाल में उनको दिलवाई थी। और उस वक्त हम ये समझते थे कि ये 2 मुरब्बे काफ़ी ज़मीन है और यहाँ पे बहुत से हमारे काम हो जाएंगे, जिसका जिक्र मोहतरम सदर साहब ने भी किया है, जिसमें 1 कनाल ज़मीन मैंने उस वक्त प्रेस क्लब के लिए भी मुख्तस करवाई थी। लेकिन आज वो 2 मुरब्बे ज़मीन सारी कंज्यूम हो गई है, इदारे बन गए हैं, अब मज़ीद इदारों के लिए वहाँ गुंजाइश नहीं है। और उसके को कंट्रोल करने के लिए, इन मामलात को हल करने के लिए मैंने फिर खेल के मैदान बनाने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल का जो जगह थी उसको अपग्रेड करा के वहाँ एक बैनुल-अक़वामी लेवल का फुटबॉल ग्राउंड कायम कराया।
اور KPS میں اسی طرح میری کوشش تھی کہ وہاں پہ ایک معیاری کرکٹ کا گراؤنڈ بن جائے، جو پروسیس میں تھا لیکن حکومت چلی گئی، پھر موقع ملا تو پھر اس پروجیکٹ پہ کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کبیر والا میں جو جب نئی تحصیل میں نے بنوائی تھی، وہ چند لوگوں نے اس وقت میری مخالفت کی تھی کہ تحصیل ادھر شفٹ کر رہے ہیں، ادھر شہر ویران ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم نے تحصیل وہاں شفٹ کی اور اس دفعہ ہم نے وہ تحصیل والی جگہ پہ لیڈیز پارک قائم کیا۔ میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کہ لیڈیز پارک کیوں، آپ کیوں کریں، ایک پارک بن رہا ہے، ایک وقت لیڈیز کا رکھ دیں، ایک وقت جینٹس کا رکھ دیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بھی تجویز دی کہ فیملی پارک بنا دیں، چلے فیملی کے ساتھ سارے آ جائیں، لیکن میں بضد رہا کہ میں یہ لیڈیز پارک ہی بناؤں گا، اور میں تمام لوگوں کو کہتا تھا کہ مرد حضرات تو کام کاج کے سلسلے میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا کافی ان کو چلنے پھرنے کا، آؤٹنگ کا ایک موقع مل جاتا ہے، لیکن خواتین بیچاری کچن اور کمرے کی حد تک محدود رہتی ہیں، اور اس لیے ان کے لیے تفریح کا پارک ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے لیڈیز پارک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی امپرومنٹ یوں تو اب بہت ساری ہیں، میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں اب یہاں گنوانا نہیں، میرا خیال ہے شاید میرے لیے ممکن ہی نہ ہو، لیکن جو خاص طور پہ ایک سڑک کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کبیر والا سے خانے وال کو، جس کے لیے ہمیں بہت سی جدوجہد کرنی پڑی، اور کافی جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور وہ منصوبہ اب منظور ہو چکا ہے، اور اس کا اپروول بھی ہو گیا ہے، اس کا فائنل کاسٹ ایسٹیمیٹ بھی بن گیا ہے، اور اس کی کاسٹ جو ہے، ہماری خواہش تھی کہ یہ ایک معیاری سڑک بنے، کئی دفعہ باتیں ہوئی کہ اتنے پیسے لے لیں، ریپیئر کر لیں، پلان کر لیں، اس کی سروسیں کر لیں، میری خواہش تھی کہ ایک معیاری روڈ بنے، اور میں نے اسی طرح کہ جب کوئی والا سے کبیر والا تک روڈ بہت خراب تھی، تو میں بضد رہا تھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروجیکٹ میں ہی یہ سڑک ڈال دی ہے تاکہ معیار بہتر ہو، اور اس کی وجہ سے مجھے سیاسی نقصان بھی ہوا کیونکہ وہ ڈیلے ہو گیا پروجیکٹ، لیکن میں نے وہ اپنا سیاسی نقصان برداشت کیا، لیکن میں اس بات پہ ڈٹا رہا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو ہی یہ سڑک بنے گی، اور وہ بنی، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج کافی سال ہو گئے وہ سڑک ابھی تک صحیح حالت میں ہے، اور اسی طرح کبیر والا آنے وال روڈ کے بارے میں بھی میں جت رہا ہوں، اور اس کا کاسٹ ایسٹیمیٹ جو ہے 60 ارب سے بڑھتا اس وقت 93 ارب پہ پہنچ کے، اور 93 ارب 92.9 کچھ ارب ہاں 10 کلومیٹر کا ٹوٹل ہے یا 11 کلومیٹر 93 ارب
93 करोड़ सॉरी 93 करोड़ हाँ सॉरी मैं 60 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ से बढ़ के ये 93 करोड़ पे पहुँचे। ये भी बने हाँ जी ये 11 किलोमीटर और इंशाल्लाह अगर ये असेंबली डिज़ोल्व ना होती तो हम महीने के अंदर अंदर इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेते, लेकिन चूँकि फिर केयर टेकर सेटअप आ गया और नए प्रोजेक्ट रुक गए, इस वजह से वो रुका हुआ है। और इंशाल्लाह यूँ ही केयर टेकर सेटअप ख़त्म होगा ये इस पे काम शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो मैंने स्पोर्ट्स का जिक्र किया ना, ग्राउंड बनाया स्पोर्ट्स हाँ जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है जहाँ पे तफरीह का भी बंदोबस्त है और एक बहुत हॉल जिसमें आप बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। बैडमिंटन के 3 नेट लग सकते हैं उसके अंदर। अगर बास्केटबॉल खेलना चाहे तो वो बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं उसमें, और वो एडजस्टेबल है और एक साइड पे स्टेयर्स है। और हमने उसकी प्लानिंग इस तरह की है कि एक साइड पे हमने शॉप्स बनवा दिए ताकि वो पूरा प्रोजेक्ट सेल्फ सफिशेंट हो जाए उन शॉप्स की वजह से। और दूसरी साइड पे क्रिकेट के लिए नेट प्रैक्टिस का बंदोबस्त, बाकी बच्चों के लिए प्ले लैंड, वॉकिंग ट्रैक और वो भी बनवाया। और इसके साथ साथ फिर सेहत के हवाले से भी हमने काम किया है। आप जानते हैं कि THQ हॉस्पिटल जो है ये 70 की दहाई में बना था, और 70 की दहाई में जो बना था उसके बाद इस पे कोई काम नहीं हुआ। और हमने अब उसमें बच्चों के वार्ड का इजाफा कराया है, किडनी वार्ड का इजाफा कराया है। जो किडनी वार्ड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसमें बस अब मशीनों की इंतज़ार है कि वो मशीनें आ जाए तो वो काम शुरू करें। बच्चों का वार्ड भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ जचगी का वार्ड भी हमने प्रोसेस में था, जो हुकूमत टूट जाने की वजह से नहीं बन सका। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम जचगी का वार्ड भी बनाएंगे और यहाँ हार्ट का भी वार्ड, हार्ट डिजीज़ के लिए भी वार्ड बनाएंगे। और वो मैं जिक्र कर चुका हूँ यूरोप ज़्यादा इलाके में। तो ये मुख्तलिफ भी है आपका जी एक मनसूबा और भी है जी कबीर वाला को तरीकी से उजाले में लेके जाते, कबीर वाला को तरीकी से उजाले में लेके जाते। लाइटिंग का वो फ़कर इमाम साहब के आपका नहीं है? नहीं मेरा नहीं, वो फतह स्वामी विभाग में भी सवाल हो सकते हैं। हाँ जी जिनका है उन्हीं को दे देंगे। हाँ। और आखिर में खैर मैं एक बात नावे से कह सकता हूँ, सदर साहब ने कहा था जंग रोड से कबीर वाला रोड तक, ये अल्लाह ताला का मैं समझता हूँ इस पे एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि इस वक्त कबीर वाला शहर में पिछले 30 साल से जो भी मंसूबे बने, जो भी इदारे कायम हुए या मंसूबे बने, वो अल्लाह ने मुझे ये शरफ बख्शा कि मेरी वसातत से वो इदारे कायम हुए। इस वक्त चाहे वहाँ सब्ज़ी मंडी से शुरू हो जाए, कॉलेजेस ले लें, स्कूल ले लें, रोड्स ले लें, और अस्पताल, बाकी जो भी इदारे हैं, स्पोर्ट्स के इदारे हैं, तमाम
या तहसील कॉम्प्लेक्स, तहसील जुडिशल कॉम्प्लेक्स, KPS जो भी है, तो अल्लाह ताला ने ये मुझे इज़्ज़त बख्शी है। और बख्शी इसलिए है कि आप लोग कबीरवाला की आवाम ने मेरा साथ दिया और साथ देने के साथ साथ उनकी दुआओं से और मेरी मेहनत से हमें ये कामयाबी मिली। शुक्रिया। आप मैं आपके सवालात जो भी होंगे डूबा हुआ है और मैं माजरत खाऊँ कि अगर कोई सवाल मेरा कोई सख्त होता है तो मैं उसके लिए मैं एडवांस माजरत खाऊँ, लेकिन ये मेरा क्योंकि वो प्रोफेशन है और मैंने इस पर अपना हक अदा करना है। तो ये सब आप अवामी नुमाइंदे हैं, कोई गली ऐसी नहीं है कि जहाँ पानी ना हो। लोग तरावी पढ़ने से आरी हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने से तंग हैं, आजिज़ हैं। और ख़ुसूसन जो हमारा इलाका है राजवा के उस तरफ का, जिसे नवा शहर कहते हैं, कबीरवाला सिटी का, तो ये हाँ आप लोग राजवा के ऊपर यानी सारा कबीरवाला के ऊपर ये सब क्या वजह है कि हम क्यों उसके ऊपर आप जो है आपकी नज़र नहीं गई, या अगर गई है तो क्या वजह है कि आप उस पर क्यों नहीं काम हो सका? ये कबीरवाला को डूबने का भी क्रेडिट आपके हिस्से में जाना चाहिए या क्या होना चाहिए इसके ऊपर? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मैंने 2006 में वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट मंजूर कराया था, बल्कि 6 से पहले 4-5 में वर्ल्ड बैंक का 4 में वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट मंजूर कराया था, जिसमें कबीरवाला के लिए पूरी सीवरेज निकासी आप और वाटर सप्लाई कबीरवाला के शर्की हिस्से में तो है, गरबी हिस्से में नहीं थी, और उस प्रोजेक्ट में वाटर सप्लाई भी शामिल थी। और उस वक्त मेरे कज़न डायरेक्टर थे कच्ची आबादी से, और उनकी वसादत से मैंने कबीरवाला को ये प्रोजेक्ट कराया, और उस प्रोजेक्ट को हमसे लेके तहसील काउंसिल को दे दिया और उसकी एग्जीक्यूशन तहसील काउंसिल ने, और उसमें से जो वाटर का सीवरेज का सामान, अब उस वक्त तहसील काउंसिल ने अगर उस प्रोजेक्ट की सही एग्जीक्यूशन की हो तो आज आप ये सवाल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस प्रोजेक्ट में जो वाटर सप्लाई का कंपोनेंट था वो तो सिरे से बना ही, उसका मुझे नहीं मालूम। तीसरी बात कि यहाँ पे 4 तालाब बना दिए गए डिस्पोजल, लेकिन उन तालाबों से आगे उसका डिस्पोजल का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। जो इस दफ़ा मैंने 6 करोड़ रुपया दे के उसके डिस्पोजल का बंदोबस्त किया उसका, और वो पूरा सड़क के साथ पाइप बड़ा है जो वहाँ जाके राजबाग में डाले, और ये जब वो तालाब भर जाते हैं तो पानी पीछे की तरफ आता है। एक ये वजह है, दूसरी वजह है कि जो सीवरेज का काम हुआ है 2018 में मैं इलेक्ट हुआ था, 2019 पानी का मसला है। और आपको शायद याद होगा कि उस वक्त मैंने सारी लाइन की सफाई करवाई। अगर आपने गुजरते हुए देखा हो कि हर हैक
मैं नोल से कई ट्रालियाँ निकली, मशीनें आई थी, मशीनें मंगवा के हमने वो जबरदस्त मशीनें आई और बात कंप्लीट कर लेंगे। भैया प्लीज कंटेन करें रखो। वो जाहिर है कि मशीनों से ही होनी थी और मशीनें हमारे पास नहीं थी, हमने बाहर से मंगवा के उस सफाई करी और उस सफाई का नतीजा ये हुआ कि पिछले 3 साल पानी सही चलता रहा है और फिर अब उसको भी अब चौथा साल है, फिर बाद में फिर किसी ने सफाई की और फिर से वो एक वक्त पे सफाई ना होना इसकी वजह, दूसरा नाकिस सीवरेज होना इसकी वजह, तीसरा डिस्पोजल को सही तरह उसको सही हालत में ना बनाना। हमने कोशिश की है डिस्पोजल को अब सही हालत में हो जाएगा तो वो एक बैग कम अज़ कम पानी नहीं आएगा। दूसरा चूँकि सफाई नहीं होती, अब ये सवाल बनता तो उनसे है जिनके पास बल्दियाती इदारे हैं, जिनके पास बल्दियात का निज़ाम रहा। लेकिन मैं अपने आप को बड़ी जिम्मा नहीं चाहता क्योंकि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ। तो वो अगर मैं तो समझता हूँ कि उस वक्त अगर सीवरेज सही डली होती तो आपको ये भी मालूम होगा, मैं बल्कि मुझे याद आ गया, ये सीवरेज डल गई थी फिर इसको इस्तेमाल नहीं करते थे, वो जी एक बंदा मर गया ये खोले आई थे, मैंने ज़बरदस्ती खुलवाई थी। ये भी आपको ये मेरे ख्याल 2013-14 में ज़बरदस्ती चालू हुई, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ जो घरों में पानी का इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है और वही वेस्ट वाटर जो है उसकी मिकदार बढ़, और इसके लिए बाकी अल्लाह ने मौका दिया, इंशाअल्लाह ताला इस सारे सीवरेज के निज़ाम को रीवैम्प करने की ज़रूरत है। जो मेरे साथ एक सवाल और है, मेरे सिर्फ 3 एक सवाल रह गए हैं। सबको टाइम मिलेगा, मेरा टाइम मैं सिर्फ वो माजरत खाऊँ, मैं सबका टाइम दे रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें भी टाइम कर कोशिश की आप दें उन्हें। ये साहब जो मेरा अहम सवाल एक है और वो मेरी ज़बान का नहीं है, पहले बैरिस्टर साहब ने वो सवाल किया है रज़ा हयात खान साहब ने, और अब वो कुछ लोगों का भी सवाल बन चुका है कि आखिर हुसैन जहानी गर्देजी को ही वोट क्यों दें। हुसैन जहानी गर्देजी साहब ने कौन से दूध की नहर बहाई है, ये रज़ा हयात खान साहब ने मीडिया के प्रोग्राम में कहा कि आप लोग क्यों नहीं पूछते हुसैन जहानी गर्देजी से कि क्या दूध की नहरें बहा दी हैं हुसैन जहानी गर्देजी को, अब क्यों नहीं आप उस उनके ऊपर लिखते। तो वो आज प्लीज़ बताएं कि वो दूध की नहरें क्यों नहीं आपने बहाई, या बहाई हैं तो कहाँ है, हमें नज़र नहीं आता। देखें मुझसे तो ज़्यादा इक़्तिदार रहा है उनके पास, तो दूध की नहरें जो भी बहा सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे एक अर्ज़ कर देता हूँ, मैंने अभी पहले भी किया है, कबीरवाला में सब्जी मंडी से लेकर तहसील का कॉम्प्लेक्स, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, हॉस्पिटल के अलिया बनना, ये सारे जो मंसूबे हैं, मैं तो स्पोर्ट्स के ग्राउंड वाले जितने भी मंसूबे हैं, ये मैं तो गिनवा सकता हूँ कि कबीरवाला को ये इतने सारे मंसूबे मैंने दिए हैं। आप गिनवा चुके भी हैं अभी? जी अभी गिनवा भी चुके हैं? गिनवा चुका हूँ अभी, तो उसके बार बार गिनवाना जो है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन कोई और सियासतदान भी कोई मंसूबा गिनवा सकता है कि कबीरवाला को हमने फलां मंसूबा दिया है। अगर दूध की नहरें छोड़ वेरी दें, गुड, कोई देश की नहरें छोड़ दें, कोई एक मंसूबा बता दें, ये या ये इमाम साहब ने ये पोज वगैरह लाइटिंग वगैरह का बंदोबस्त किया। हाँ, बल्कि लाइटिंग से मुझे याद आया, मेरा एक और भी मंसूबा था जो मैं पाया तकमील पे नहीं कर रहा था,
कबीर वाला को सेफ सिटी बनाने के लिए कैमरों का इंतजाम, जो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मेरे एजेंडे पे होगा। अच्छा, लेकिन कोई एक मंसूबा तो वो भी बता देना कि वो फलां मंसूबा उन्होंने किया है, फिर हम कहेंगे हम अपने 4 मंसूबों के बराबर उनके एक को गिन लेंगे, वरना दूध की नहरें तो खैर वो तो रात नहीं बहानी है, वो भी मैं सर अब सियासी सवाल की तरफ आते हैं। जो इस वक्त एक ज़बान ज़द आम सवाल है वो है सैयदा रुबीना गर्देजी साहबा के हवाले से। आप माशाल्लाह यानी कबीर वाला की आवाम ने आपको 17-18 हज़ार की लीड से जितवाया, वो लीड अगर अब आप घर में ही आपके नकद लग गई है तो कहीं ये ना हो कि जिस तरह सैयद फ़खर इमाम शाह साहब का 3 टेन्योर में डॉक्टर खावर शाह साहब ने हाल किया, वो कहीं सैयदा रुबीना गर्देजी आपके लिए भी वही न साबित हो रहे हैं डॉक्टर खावर शाह, तो आप लाइट ले रहे हैं उन्हें या क्या मामला है, कोई सुलह नहीं होती, और गर्देजी फैमिली में क्यों कन्फ्लिक्ट है? पहली बात तो ये है कि मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहता, क्योंकि बंदा बात करता है ना तो कोई बात ऊंच नीच हो जाती है बात करने में। तो मैं उनके एहतराम में कोशिश करूँगा कि मैं कोई ज़्यादा बात ना करूँ। अब आपने सवाल किया है तो मुझे जवाब देना पड़ता है। इसका सिंपल जवाब तो ये है कि ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पिछली दफ़ा भी ऐसे तरह की कोशिश की गई थी और सकलैन गर्देजी साहब को कहीं बनाया गया, लेकिन उनको बात समझ आ गई थी। इस दफ़ा इनको बनाया गया तो इनको ये बात समझ नहीं आई पहले, और बाद में शायद जब मुझे तो वो जो चिलर ग्रुप के साथ चलता था जब वो उनसे वापस हट गया तो वो चिलर ग्रुप तो कहता था, क्या क्या बातें करता था कि जी वो उमर साहब ने क्या दिया है कि बस यही वो कैंडिडेट है, और लेकिन वो उमर साहब ने तो उनको सिर्फ पक्का करना था, पक्का करके पीछे से सीढ़ी खींच ली। तो बाकी जो वहाँ तक रही रकम लगाने की बात, रकम तो उतने ही वोटों को लगेगी ना जितना उनके कज़न ने पिछले बल्दियाती इलेक्शन में वाइस चेयरमैन के लिए, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी यूनियन काउंसिल की वाइस चेयरमैन। इसमें सेकंड लास्ट सवाल है जी मेरा, समझ गए जी? बोला सबके सवालों का जवाब देंगे। सबके सवालों का जवाब देंगे जब इसके सवाल खत्म हो जाएंगे। सवाल ये है कि सियासतदान जो होते हैं ये यकीनन इनको हर चीज़ से ज़िले में बैठते हैं, तहसील में बैठते हैं, अपने हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब में बैठ के, तो क्या कुछ चीज़ें छोटे छोटे इदारे जो हैं उनके अंदर अगर सियासतदान अपना इन्फ्लुएंस शो करना शुरू कर दें तो उससे नुकसान ग्रुप को होता है, जो हमने देखा है। तो आपने मरकज़ी अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट आपकी शो हुई, तो जो आप क्या ये सतही मामला नहीं था कि आपके लेवल का ये मामला नहीं था, आपको नहीं आना चाहिए था, और इससे नुकसान आपके ग्रुप को, सैयद ग्रुप को नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ, जो हमारी समझ में, लोगों की आम आवाम की समझ में आ रहा है कि वो आपकी वजह से वो नुकसान हुआ। वो क्या आपकी गलती थी? आप एडमिट करते हैं उस गलती को कि आप पहले तो आप मुझे बताएं नुकसान क्या हुआ? यानी एक दो फैमिली ऐसी हैं जो सैयद ग्रुप की बहुत शुरू से वो साथ थी, जैसे डूडी फैमिली है, तो वो अब इस वक्त डूडी फैमिली, इसके अलावा भी कोई बताएं? एक तो है ना जिक्र करने के काबिल, मैंने एक फैमिली छोड़ के गई है, उसके मद्दे मुकाबले मुझे ज्वाइन करना उसी नंबर 2, मैं आपको, आपने तो एक गिनवाई है, मैं आपको 10 गिना सकता हूँ जो लोग मेरे साथ नहीं थे वो आप मेरे साथ। अंजुमन ताजरान जिस ग्रुप की मैंने सपोर्ट की वो तब मेरे साथ खड़ा है, और जिस दिन मैंने नॉमिनेशन दिए वो तमाम ग्रुप मेरे साथ हैं, देखी उनकी तस्वीर, तो ये नुकसान है। दूसरी बात,
एक बात। दूसरी बात, हमारा तो एक बुनियादी असूल है, जिसके साथ खड़े हैं। हमने मुनाफाना सियासत कभी नहीं की। और हम ओपन न होकर खड़े होते हैं, उसमें नफ़ा और नुकसान हो, वो हमारा दोस्तों के साथ। ये सब फराज ग्रुप की तरफ से एक बात आई, महाराष्ट्र में आप भाई साहब उसके हमारे मेहमान थे, तो उन्होंने इशारतन किनायतन आपका तज़किरा किया कि बस मेरे को सच्ची गाल ना खुलवाओ। तो वो आई सच्ची गाल खोल दियो भी। उनका कहना है कि आपने धोखा किया उनके साथ, हराज ग्रुप के साथ उन्हें छोड़ दिया। उस वक्त वो एक मुश्किल वक्त में थे, आपने हराज ग्रुप के साथ धोखा कर दिया। क्या वाकई आप तो मोहसिन कभी वाला समझते हैं, आप धोखाबाज हुआ आपको कह के चले गए, इसके बारे में आप क्या कहें? पहली बात तो ये है कि मैं धोखा देने वालों पे लानत करता हूँ। मैं धोखा कर बहुत पुराना और ताल्लुक था। हमारे इकबाल के साथ मेरा अच्छा वक्त नहीं, मुझे सियासत सारी उनके साथ की, लेकिन राज साहब ने पिछले 2013 से 2018 तक का जो टेन्योर था, इसमें वो उन्होंने पहले से ही फैसला कर दिया था कि उन्होंने मुझे सियासत से फारिग कर दिया। बल्कि मेरे पास वो बंदा भी मौजूद है जिसको उन्होंने कहा था कि इस इलेक्शन में मैं हुसैन की सियासत मुका दे बनी। जो वो प्लानिंग कर रहे थे, मैंने उनकी प्लानिंग कोई इलेक्शन के वक्त नहीं थी, इलेक्शन से पहले थी। उसमें जैसे अभी मैंने जिक्र किया है, सकलैन गर्देजी साहब को कैंडिडेट बनाया, और मैं लव सपोर्ट कर सकता हूँ। या सकलैन, ये हुसैन तू होगी, ये मेरी बात सुन, तो ये इलेक्शन लड़ना है तो मैं तेरे कारण हाजिर, कोट अनकोट में कह रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह सलार बांड में मेरे बिरादरी के लोगों को उन्होंने मेरे खिलाफ किया, कुछ लोगों को उकसाया। और वो जो ये एक दिन का काम नहीं था, ये जिस दिन से इमदादुल्लाह गुसाल चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी लगा, उस दिन से उन्होंने प्लानिंग की, और उसी हिसाब से वो ये इलाके में चलते रहे। मैंने और वो गुसाल की वजह से फंड की कोई कमी नहीं थी, उन्हें शहबाज शरीफ तक एक्सेस की कोई कमी नहीं थी, और मेरे फंड भी MPA के उनको भी मेरे सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू, मेरे फंड भी उनको मिलते थे उस वक्त। और मेरे मंसूबा हुसैन साहब से पहले मैंने मंसूबा मंजूर कराया था रोड का, गोकल वाली पुल से लेके कुकड़हट्टा तक। कौन सी पुल से जी? गोकल वाली पुल से लेके कुकड़हट्टा तक, और कुकड़हट्टा पे नया ब्रिज, वो ब्रिज वो सड़क तो बन गई, भूसाल साहब आगे, ब्रिज अभी बनना था, ब्रिज रुका रहा, वो इस टेन्योर में बना है, वो पिछले टेन्योर का। और इस टेन्योर में भी हाई कोर्ट तक रोकने की कोशिश की गई उस ब्रिज को। आप देखे जाके कि कुकड़हट्टा में लोगों की सहूलत क्या है उस ब्रिज की। अब बड़ी गाड़ियों को आने जाने में की पहले क्या दुश्वारी होती थी और आसानी से। लेकिन मैंने कभी इस तरह नहीं किया था। फिर उसके बाद
میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی ہم پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں. میں نے انہیں کہا لاہور میرے گھر میں بیٹھ کے میں نے کہا کہ چلے جی چھوڑیں ان کو جو ہم پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں. میں نے کہا کہ بار صاحب 5 سال کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے, 5 سال تو میں پورے کروں گا جی, اور 5 سال جب پورے ہو جائیں گے پھر دیکھ لیں گے, اگر ان کے ساتھ نہیں رہنا تو کسی اور فیصلہ کر لیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر. اس میں اور بھی مزے کی بات میں بتا دوں, آپ نے کن سے وعدہ کیا ہوا تھا 5 سال میں؟ وہ پچھلے آزاد جیت کے گئے تھے نا, نون لیگ کے ساتھ میں نے کہا 5 سال تو پورے کریں گے. تو اس کے بعد بلکہ جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی تو شہباز شریف نے ایک دن مجھے بلا دیا اور مجھے کہتے ہیں, اور جیسے اس کا اسٹائل ہے, اس کو ہرانا ہے, اس کو ہرانا ہے, اس کو ہرانا ہے. تو میں نے کہا جی آپ نے پورے 5 سال پورے 5 سال آپ نے میری کاسٹ پہ ان کو ابلائز کیا ہے, تنخواہ کیا جی. آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہرا دیں. میں کیا کرتا ہوں, قسمیں بہت اٹھاتا ہوں. اچھا وہ قسمیں بہت اٹھاتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں. اچھا پھر اس کے بعد پھر میرے پاس آئے ہمارے ساتھ, میرے گھر لاہور والے گھر, اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں ہم اکٹھے سیاست کرتے رہے, اکٹھے الیکشن لڑے, اب آپ نے کیا نکالنا ہے مسلم لیگ سے, اب چھوڑیں, مہربانی کریں, چلیں ہم اکٹھے لڑیں گے الیکشن. پی ٹی آئی میں درخواست دیں ٹکٹ کی جی, اور انہوں نے کافی باہر ڈالا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں پی ٹی آئی میں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں. کہتے نہیں وہ بھی میں آپ کا بندوبست کرا دوں. ساؤتھ پنجاب کا صدر ہے خاکوانی, اسحاق خاکوانی, وہ میں ابھی فون کرتا ہوں, وہ سارا آپ کی اپلیکیشن ٹکٹ کی جو ہے دلوا دے گا. اس کے گھر پھر میں نے کہا اچھا, پھر مجھے فون کیا کہ میرا بھی بات ہو گئی ہے اسحاق خاکوانی سے, آپ جا کے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں. اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں صبح چلا گیا. نیکسٹ ڈے میں چلا گیا وہاں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں. اسحاق خاکوانی سے میرا بہت پرانا تعلق ہے. وہ جس زمانے میں وہ ہمیں بھی گھڑ سواری کا شوق تھا, وہ بھی پولو کھیلتا تھا, تو ہمارا بہت پرانا. تو وہ بیٹھ کے ہم آیا, میں نے کہا وہ درخواست دینی ہے, وہ بینک ڈرافٹ بنانے دیا. اور بہت صحیح شانس ہے, ابھی بھی مدت بعد کا ہوا ہے بہت. یہاں پہ ڈرائیور سے لیفٹ اس زمانے ایک اسلام آباد سے کوڈ ایشو ہوتا تھا, اس کوڈ پہ اپلیکیشن اس میں وہیں بیٹھے کوڈ ایشو کیا. وہ یہی ڈرائیور کو پیسے دیے, پیسے پارٹی کاٹتے, اس نے سارا دن وہاں مجھے بٹھائے رکھا. پرانی باتیں وہ گھوڑوں کی. اور اس دوران راج صاحب کی 3 کال وہیں بیٹھے ہوئے, کہ وہ درخواست جمع ہوئی ہے کہ نہیں.
वो खाकुआनी साहब मुझे कहते हैं, शाह साहब एक गाल तक सौ कि रजा याद तो थोड़ी टिकट का मुखालिफ है ये त्रीजी जा फोन की थी खड़े ये गिदड़ सिंह केड़ी सिंघाई दो ये कोट अनकोट खिदा काटवानी के गिदड़ सिंह केड़ी सिंघाई दो मैंने आगे से कहा कि गिदड़ सिंह वगैरह की बात नहीं है, क्योंकि हमने इतने इलेक्शन इकट्ठे लड़े हैं तो हम एक दूसरे की ज़रूरत है, वो मेरी ज़रूरत है ना उनकी ज़रूरत है, और कोई बात नहीं है। इसके बाद फिर क्योंकि मैं तो पीटीआई में जिनकी वजह से पीटीआई में मैंने रहा हुआ था, मेरे रास्ते थे, वहाँ से मुझे जब कंफर्म हो गया कि ये मेरी टिकट की मुखालफत कर आपको खुद वहाँ भेज के वो जो उन्होंने कहा था ना कि मैं सियासत मुका देंगे, वो मेरी सियासत इस तरह मुका रहे थे कि मैं इसको लारा लगाई रखूँगा पीटीआई का, और एंड में टिकट नहीं मिलेगी, फिर कहूँगा अब टिकट मिली नहीं है, अब आप आराम से घर बैठे। अच्छा वो मैंने पीटीआई वालों ने जब मुझे कहा कि मुझे आपको तो जी वो मुखालफ कर रहे हैं, उन्होंने अपना पैनल ये बना के दिया है और इसी पैनल को वो फाइनल ये कर, जब मुझे पता चल गया कि पीटीआई ने ये पैनल फाइनल कर डिसाइड कर लिया, तो उस दिन मैं अपने साथ खावर गंदेजी, कारी खावर गंदेजी, मेजर हसन अस्करी गंदेजी, ताहिर अब्बास गंदेजी, हाँ सईद अब्बास, मैं अपनी बिरादरी के ये 4 बंदे ले के दोपहर को 1 बजे मार साहब के घर पहुँचा, मुल्तान में, रमज़ान का महीना। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, बीच में कई बातें स्किप कर रहा हूँ, मेन बात बात बहुत लंबी है। हाँ, मैं रज़ा याद साहब के घर पहुँच गया और मैंने कहा जी मेरे साथ फैसला करें टिकट का, आप क्या कर रहे हैं? और मैंने तो पता नहीं मैनू टिकट मिलती है कि नहीं मिलती, और वो मेरा मैनो ये नुमान उन्होंने टिकट नहीं मिल रही, तो मैं कहा परेशान बैठा, मैनू टिकट पता नहीं मिलेगा, ये और फिर मैंने ये मौजूद थे, ये तीनों भाई हो सब ने उन्हें मार दफर साथ लेने तुमने गल कर। इसमें एक बात जो मैं स्किप कर रहा था, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मेरे से कहा था कि मार दफर आबाद दफर क्यों नहीं कैंडिडेट, एक बार लगे बस है तो बहास है, मुझे ये कहा था। और मैं फिर बार बार इनको फ़ोन करता था कि चलो चले दफर के साथ, तो ये वो अस्कर रियाद ने मैं ज़िम्मे लाया, वो टाइम बड़े सी वोट देता, मुझे ये हर दफ़ा मैं फ़ोन करता था और ये कहते अस्कर रियाद ने मैं ज़िम्मे लाया, वो टाइम बड़े सी वोट देता। और मैंने उस वक्त वो मेरा टाइम नहीं बना, मैं इसीलिए पहुंच गया, मैंने कहा आप मेरे से फैसला करें क्या सोचा। फैसले में अबाद जफर भी आ गया, अबाद जफर भी आ गया, वो बैठे रहे, वो खींचा था नहीं खींची रही, आसान तो पता नहीं हो टिकट क्या होता है, ये होता है। मुझे पता था कि पीछे से टिकट ये फैसला ये करा क्या है। और
اس کے بعد افطاری بھی ہم نے وقت کی رمضان تھا باہر تھا پھر بیٹھے رہے یہی کھینچا تھا لگی رہی تھی رات کے ایگزیکٹلی 11:40 پہ میں وہاں سے نکلا جب میں نے ان کو پوری طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کیڑا کر کے کیڑے تو کیڑا کر کیڑے کر کے اور نیکسٹ ڈے میں یہاں یہ بھی بتا دوں 2008 میں بھی میرے ساتھ سید گروپ نے رابطہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ 2013 میں بھی رابطہ کیا لیکن میں نے 8 بھی کیا تھا میں نے کہا تھا میں میرا ہاں اور یہ 18 میں بھی وہ ان کے کچھ دوست میرے ساتھ نیکسٹ ڈے میں نے ان کو گرین سگنل دے دیا جب میں نے دیکھ لیا ان کو تو وہ اسی وقت تشریف لے آئے ملتان میرے قدر کے گھر کی مہربانی ہے انہوں نے وہ آئے میں نے کہا کہ کبھی میں ان کے ساتھ جب وہ بات ایک دن شام کو ہو گئی دوسرے دن ملتان کے ہوٹل دوسرے دن کوئی ان کو بھی بھڑک پڑی یہ وہی ملاقات کا تذکرہ ہے جہاں کبیر والا ایک صحافی بھی وہاں تھا وہاں پہ ہاں کبیر والا وہاں تنظیم لے آیا اور اس کے بعد جواب نہیں کیا اس کے بعد میں نے سید گروپ کے ساتھ آنی بند ہوا میرے کزن کے گھر اعزاز کے دل صاحب کے گھر LGS اور پھر قریب مافیا سے بیکار کے درمیان اور اس کے وہاں بات ہوگی نیکسٹ ڈے قاضی کاور اور میں اور سارے ہم چائے خانہ میں افطاری کر رہے تھے وہاں بیٹھے تھے افطاری کر رہے تھے تو مار صاحب کا فون آیا جی تو مار صاحب نے قاری خاور نے مجھے دکھایا کہ یہ فون آیا میں نے کہا سن لیں بات کر انہوں نے کہا قاری صاحب وہ 9 بجے آنا عمران خان کا فون تساں بھی آ جاؤ تو مڑ میاں حسین کی ٹکٹ کی گل کریں گے قاری خاور نے میرے طرف اشارہ کیا میں نے کہا آپ ہاں کریں آپ قاری خاور نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں 9 بجے 9 سے پہلے افطاری کے بعد میں آ رہا افطاری کر رہے ہیں تو افطاری سے ہم اٹھے قاری خاور اپنی گاڑی میں بھی نہیں تھا میں نے اپنی گاڑی میں قاری خاور کو گیٹ کے باہر صاحب کے گیٹ کے باہر چھوڑا اور اس نے کہا میں کیا کہوں میں نے کہا جی پہلے تو آپ کریں فون کا انتظار جب فون کی انتظار کچھ اچھی طرح ختم ہو جائے پھر ان کو بتا دیجیے گا کہ ہم ان کے ساتھ اور اسی طرح وہ قاری خاور وہاں گیا اور بیٹھا رہا وہ فون تو آنا کیا تھا وہ تو ایسی بات وہ جب رات کے 11 بجے انہوں نے کہا جی مار صاحب فون تصا اپنا پینل جڑا بھی بنا لو میاں حسین یہ ہے سٹوری اور اس کے ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں تھینک یو ویری مچ جی میں خالد شفیق صاحب یہاں صاحب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس بائیس اسمبلی کے لیے آج سپریم کورٹ کے بعد ایک حکم آ گیا آپ کی PTI کے ٹکٹس کے امیدوار ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں کیا آپ کو ٹکٹ ملا تو لڑیں گے اگر نہیں ملا تو کیا پھر بھی لڑیں گے الیکشن ٹکٹ تو سیکنڈ سوال ہے پچھلی مرتبہ اثر ریاض صاحب یہاں پر آئے آپ کی
तो उन्होंने ये कहा था कि 2018 में जो मियाँ साहब जीते थे वो हमारे लिए जीते थे और हमारे कम से कम 10,000 वोट राज्यों में थे, वो आपको मिले थे। जब इस मरतबा ऐसा नहीं होगा, कैसे इत्तेफाक करते हैं आप? टिकट का तो एक फॉर्मेलिटी है, उसमें तो मैं बात मुनासिब नहीं, बिफोर हैंड मैं की बात करूँ। बाकी 10,000 वोटों का जो क्लेम है वो मुझे 10,000 तो बहुत बड़ी तादाद है। मुझे 10 बंदे मेन गिनवा दें कि ये 10 बंदे हराज ग्रुप के थे जिन्होंने मुझे वोट दिए। ये साहब एक मिनट, अच्छा 10 बंदे वो गिनवा दें कि ये 10 बंदे जो है ना वो हराज ग्रुप के थे और मेरे साथ। बल्कि जब मैं हराज ग्रुप के साथ भी इलेक्शन लड़ता था, उनके कई धड़े मुझे वोट नहीं दिया था और मुझे पता होता था कि मेरी लीड अगर मैंने मार साहब के जो हमारा मुश्तरका वोट बैंक है उससे अलावा 5-7 हज़ार वोट एक्स्ट्रा ना लिए तो मैं हार जाऊँगा। और मैं नाम लेके बता सकता हूँ, मौजा बूटा कोट में मार इकबाल साहब रजा याद साहब का जो ग्रुप था उसने कभी भी मुझे वोट नहीं। 5 कसी में जो उनका ग्रुप था उसने कभी मुझे वोट नहीं दिया। वाला में जो उनका ग्रुप था उसका आधा ग्रुप जो है उसने कभी मुझे वोट नहीं दिया। फिलहाल थैमा में जो उनका ग्रुप था उसने कभी मुझे वोट नहीं दिया। और इस तरह और भी कई लोग हैं जिनको अभी किसी शहर में उनका ग्रुप, मैं कई लोग नाम अभी भी बता सकता हूँ जिन्होंने कभी मुझे वोट दिया। जब मैं उनके ग्रुप में था अभी उनके कई लोग वोट नहीं देते थे। तो इस दफ़ा जो वो क्लेम करते हैं कोई एक धड़ा, कोई एक बंदा का नाम मेरा तो बल्कि जो मेरी बिरादरी के लोग हैं उनसे गिला यही है कि मैंने कहा हराज ग्रुप का तो कोई बंदा, मैंने कहा 30 साल तो मैंने हराज ग्रुप के साथ गुजारे हैं और उनके लोगों के काम किए, कोई एक बंदा। तो इसका शिकवा आपने मिनिस्टर साहब ने नहीं किया कि ये हम तो वक्त उस गुजारने वाले थे ना, हम तो वक्त गुजारने वाले। ये सब स्क्रैप लेकर नहीं आया। स्क्रैप तो होता ना पहले से लिखना पढ़ना, किसी का बताना फिर आगे कहना, ये स्क्रैप ठीक है। तो मैं किलो अंग्रेजी आती है। ये साहब बतौर MP मुझे किसी को आपसे इख्तिलाफ नहीं, बतौर MP जो आप MP आपका करेक्टर है, मेरे पास कोई ऐसा सवाल नहीं कि जो मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपने काम वो किए हैं जो किसी ने ढके छुपे नहीं। स्लेट में साथियाँ लाया जो नंबर पर आके चला जाऊँ। और तीसरी बात सर जी पे साहब ये है, ज़रा नोट कर लीजिएगा कि आपका मेरा ज़ाती झगड़ा हो सकता है, मैं बैसियत वोटर वर्कर बैसियत जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आप पे क्या सवाल करूँ। सब सामान सब काम मुझे सामने नजर आ रहा है, हम लिख चुके हैं, कह चुके हैं। अस्कर आराज क्या कह रहा है, रज़ायात क्या कह रहा है, हम कह चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं हरा या जीता हुसैन जाने के भाई। ये एक सवाल ही सर, एक मिनट मियाँ साहब आपने इतनी बातें की, अच्छा भी लगा। सिर्फ मुझे एक सवाल मेरा है, ये मैंने जो बातें कहनी थी वो मैंने हुसैन जानी गिरदेरी से की। मैं किस MP से बात करूँ जिसका कोई दामन ही खाली नहीं, मैं क्या सवाल करूँ। एक मेरा सवाल है आपसे कि आपको सच्चे लोग पसंद है या झूठे? बस मुझे हर पाकिस्तानी पसंद है। सच्चे या झूठे? झूठे या सच्चे? सारे पसंद है ना। इंसान है, इंसानों में कमजोरियाँ होती हैं, छोटी छोटी कमजोरियाँ। मासूम तो कोई नहीं है ना। बाजी मैं मतलब बालावा से कोई सलाम नहीं है। इतने तो बकायदा मैं क्या कर सकती, मेरा अपना घर जिसे बैठे। हाँ जी, एक और दूसरी गल है कि मैं थोड़ा बहुत धन्यवाद है, शुक्रगुजार कि तुसा साढ़े माशाअल्लाह ठीक है ना जी। बाकी अल्लाह मुबारक साहब।
मैं सब मेरा सवाल है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम 20 साल यानी कि मुसलसल हालात ग्रुप के नाल रिलेटेड रहे ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਯਾਤ ਨੇ ਆਸਮਾਬਾਦ ਗੈਸ ਨੀਤੀ ਜੋ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਸਫਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆ ਤਰਜੀਹਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਾਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਲੋਕ ਮੁxtਲਿਫ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ MP ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MNA ਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਬਤ, जबकि तुसा इतना अरसा MPA भी बने और तुसा थोड़ा एक भरपूर धड़ा भी मौजूद है और उसके बावजूद भी तुसा MNA शेप वास्ते अपने आप को क्यों सफेद रखा कि अपने आप को MNA वास्ते अपने आप को अपेयर क्यों नहीं किया और धड़ा बना के तुसी फखर इमाम और राज ग्रुप की विसाखियां के सहारे ते क्यों खड़े हो, जबकि थोड़ा इतना पॉपुलैरिटी है कि तुसी अपना धड़ा पहली बात है कि मैं किसी की विसाखी से नहीं खड़ा, मैं अपने पैरों से खड़ा और मेरा वोट बैंक है जरा हर बंदे को पता है। और दूसरी बात यह है कि तुसी आखे कि जी लोग MPA लड़े फिर MNA चले गए, MNA बन तुसी उत्थे ही MPA ते खड़े। उसकी बुनियादी वजह ये कि ना मैं किसी फाइनेंसर के जरिए इलेक्शन लड़ना और न मेरे को इतने ज़्यादा वसी वसाइल हैं कि मैं MNA भी करूँ। इस वास्ते मेरा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि मैं अपनी हिसाब के मुताबिक इलेक्शन लड़ना और यही वजह है कि मैं MNA। और दूसरा सवाल है कि अगर PTI अगर मेरे को भी मैं भी बना लेता 4 फाइनेंसर तो मैं सोच लेता कि चलो उन्हें मैंने ना, लेकिन मैं ऐसा करना मुनासिब नहीं समझता। अच्छी बात। दूसरा मेरा सब है कि PTI मुस्तकबिल अगर PTI इस पोजीशन में नहीं होती और बिलफर्ज कि अगर इस PTI के दौर के बाद अगला थोड़ा मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर PTI ये जो होगा या फिर भी जिस तरीके उतार चढ़ाव होगा जो मैं देखो जी मैं कभी भी मेरी सियासत में थोड़ा बता कर मैं सियासत की इब्तदा की फर्क लगा रही जरा कानूनी है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਮੀ उसके बाद लगारी साहब की ज़िंदगी के बाद मैं इंतखाब करना आई और एक दयानतदार पार्टी चूँकि मैं लगारी साहब ना होने की एक वजह ये भी आई कि वो दयानतदार थी और मैंने उस वक्त इमरान खान नजर आया, वो तौर गया। फिर मकामी मजबूरियाँ या पार्टी ने उस वक्त मैं टिकट ना दिता, ये हालात बने जिसकी वजह से मैं वही मकामी खड़े नाल खड़ा रहा, उन्होंने नाल ही मैं सफर किया। ਉਹਦੇ भी फिर कोई मकामी रफाकत की
वजह तो मैं नून लीग छोड़ वापस PTI और अल्लाह मेहरबानी करे और PTI च ही खड़े हैं तो और बाकी ज़िंदगी पूरी है PTI का। जी कोई और दोस्त सवाल करना चाहे? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं साहब। सर सवाल अगे सर पहले तो मैं महसूस कर रहा कि अज की निश्चित जो मियाँ साहब के नाल जो कन्या की मुबारक खुशी सी काफ़ी टाइम जो ये सर मेरा पहला सवाल ये है कि तुसी राज ग्रुप नाल भी वक्त गुजारिया और ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਈਦ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲਤ में महसूस ਹੋਇਆ? ਨੰਬਰ 2 ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ बाद आपका जवाब कैसे आप चाहें? जो आपको बेहतर लगे। अच्छा वो एक साहब ने पहले मुझे उनका सवाल किया दोनों दे दियो कि उसने कहा कि जी उधर ज़्यादा कंफर्टेबल थे ये मैंने कहा यार बस यही फ़र्क है कि रज़ा याद के साथ जब मैं था रज़ा याद जब बात करता था ना कोई तो फिर हम सोचते थे कि इसने जो ये बात की है तो इसका असल मकसद क्या है। फ़खर इमाम के साथ होने का ये फ़ायदा है कि फ़खर इमाम जो बात करता है हमें पता होता है कि ये अंदर भी इसके अंदर भी यही बात वो सोचना नहीं पड़ता कि ये इसके अंदर की बात क्या है वो निकाले। दूसरा इमरान खान जो है ना इमरान खान की शख्सियत को मैं दो हिस्सों में देखता हूँ। एक हिस्सा है उसका ज़िंदगी का जो एक सुपरस्टार और दुनिया के लिए वो हॉट थ्रॉप था और दूसरा एक बहुत बड़ा ग्लैमरस सुपरस्टार पार्टी बॉय। एक दूसरा हिस्सा जो उसका चेंज का जिसमें उसने मज़हब और इश्क रसूल बहुत हावी हुई और अब एक वो इमरान खान था और एक आज का इमरान, ये दो डिफरेंट इमरान और मैं समझता हूँ कि अब का इमरान खान जो है ना ये एक आशिक रसूल है और वो हमें इस बात से भी तस्दीक होती है कि कई फैसले वो करता है ना हम समझते हैं कि गलत फैसला करता है बाद में वही फैसला उसकी फेवर में सही है। ये जो 2-4 हमने कई हम जो रिवायती सियासत हैं हमें उसके इनिशियली फैसलों से कई दफ़ा इख्तलाफ होता है लेकिन बाद में रिज़ल्ट वो हम जैसे तवक्को कर रहे होते हैं कि इसका ये नेगेटिव रिज़ल्ट निकलेगा वो नहीं निकलता। तो ये कोई अल्लाह ताला की उसके खास रहमत और जो आज पॉपुलैरिटी का लेवल है उसका ये भी अल्लाह ताला की खास में उस पर इनायत है। वरना पॉलिटिकल लीडर पॉपुलर भुट्टो साहब बहुत पॉपुलर लीडर थे लेकिन ये तो उस भुट्टो साहब को भी क्रॉस कर गया। तो ये है उसकी शख्सियत। ये 14 जी नहीं कर लो करेंगे सवाल कर लेंगे पहले ये जो अभी आपने अपने इसमें भी कहा आज एक फैसला भी आया है इलेक्शन कमीशन के उसके फैसले के खिलाफ तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त की जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है या टेक केयर गवर्नमेंट है वो इलेक्शन करवाएगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुकाबले में और जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो 16 मई की डेट में कर दी 14 तो
आपको क्या नजर आ रहा है इस पूरे सियासी जो तलीमुल बना हुआ है कि क्या इलेक्शन होंगे या इसी में भी कोई जंग सी चलती रहेगी? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि किसी ने तो आइन और कानून के बारे में भी बात की। पहली बात तो ये है कि आइन मुकद्दम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आइन के ऐन मुताबिक है और इस वक्त आइन की पासदारी जो है ना वो सबसे अहम है। जब हज़रत मूसा जैसे हजूर पाक कुरान मजीद में हजूर पाक ने हमें कुरान मजीद दिया, मुख्तलिफ अम्बिया ने कुछ सहीफे किसी तो 10 कमांडमेंट्स जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दी थी तो उसमें एक कमांडमेंट ये भी थी, मैन शुड बी रूल्ड बाय लॉ नॉट बाय मैन। जी, तो इसलिए हम समझते हैं अगर आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाएगा तो मुल्क बेहतर चलेगा, वरना किसी शख्स की मीरास तो नहीं है ना ये मुल्क, ये अवाम ये किसी के गुलाम तो नहीं है। तो ये फैसला आइन के मुताबिक है, हम इस फैसले की इसलिए हिमायत करते हैं और जो इस फैसले से इनहराफ करेगा वो आइन तोड़ने का मुर्तकब होगा और आइन तोड़ने वाले की वो आइन ने ही ये आर्टिकल 6 तजवीज़ किया हुआ है जो आइन को तोड़। देखिए चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को कहा कि जी आप स्विस गवर्नमेंट को ख़त लिखें कि जी हमारे जो वो केस ख़त्म किए गए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले हासिल गर्दारी के केस थे उसको दोबारा चालू किया जाए। उन्होंने नहीं लिखा, वो डिस्क्वालीफाई हो गया सुप्रीम कोर्ट। और अब जो भी सुप्रीम कोर्ट को के फैसले को का इनहराफ करेगा वो आइन तोड़ने का भी मुर्तकब होगा और सुप्रीम कोर्ट की तो अदूली का भी मुर्तकब होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगता है। ये सर आइन मेरा सवाल है, काफी सारे उम्मीदवार आपके मध्य मुकाबले हैं, कोई भी उम्मीदवार जो है वो जो है ना कमजोर नहीं है, सारे उम्मीदवार इलेक्शन में आया लड़ने के लिए तो उनका वोट बैंक भी होगा, लेकिन बज़ाहिर जो 2 कैंडिडेट हैं इस वक्त जो हम समझते हैं कि इस वक्त आपके मुकाबले के उनमें एक राना इरफान महमूद साहब और एक असगर हयात हराज है, आपका मुकाबला किससे है? किससे आप समझते हैं कि ये जो इनके साथ मुकाबला करने के बाद कामयाब मेरे लिए तमाम उम्मीदवार मोहतरम हैं और उन्होंने अपना बयानिया देना है, मैंने अपना बयानिया देना है और ये हमने तो सारों के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है और फैसला ये तो जब कैंपेन शुरू होगी वो लोग ही करेंगे वो किससे ज़्यादा कर। या सर आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, तो 90 दिन जो है वो 18 को अप्रैल को पूरे होने थे, ये अप्रैल भी गुजर गया और मई भी गया, आइन तो टूट गया, अब क्या होगा? आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला नहीं पढ़ा इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले में लिखा था कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम है। अब चूंकि इतना वक्त गुजर गया है, अब 90 दिन से आगे जितना दिन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है उतने दिन आगे बढ़ा के तो उसमें इलेक्शन फौरी तौर पे करा दिया जाए। वो पहले फैसले में लिखा, आज के फैसले में भी उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन थे 13 दिन ज़ाये हुए, वो 13 दिन
हम ऐड करके तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो कंडोन किए वो अच्छा, मियां और साहब- इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हतमी कहा है कि इसके अंदर मजीद लेट न किया। अच्छा मियां साहब, आपने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में आपने कहा कि मेरा नैरेटिव ये था कि मेरे इलाके में पसमानदी थी सेहत के हवाले से, तलीम के हवाले से, फिर मैं इसलिए आवाम का दर्द लेकर मैं आया और मैंने इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन में मियां साहब बहुत सारे धड़े जो होते हैं वो एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, दूसरे ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते, नाराजगियाँ भी बनती हैं। चूँकि आपका मकसद है खिदमत आवाम की, अब बहुत सारे लोग आपसे शिकवा गुनाह इस बात पर होते हैं कि जिन लोगों ने आपको सपोज वोट नहीं दिया वो अगर आपके पास आ जाते हैं और आपके पास चल के आते हैं और आप इस बिहार पे उनको सपोर्ट नहीं करते या उनका काम नहीं करते, भाई इसने मुझे वोट नहीं दिया था, तो मैं समझता हूँ कि ये खिदमत का नैरेटिव नहीं है। कमल जी पहली बात तो ये है कि सॉरी, बल्कि अगर कहीं और से उनका काम हो रहा होता तो उसमें भी सुनने में ये आता है कि आप इंटरप्ट करते हैं कि ये फलां ग्रुप है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो ये लोग अच्छा छिपा गुनाह होते हैं। अगर आपका नैरेटिव सियासत में खिदमत है तो आपको सबका फरागदिली से काम करना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए, ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हो इस बात से कि मियाँ साहब के दिल में कोई ऐसी बात नहीं, रंजिश नहीं होती, मियाँ साहब सबके लिए आमीन है। देखिए सपोर्टर और ओपोनेंट पहली बात है बराबर नहीं हो सकती। जहाँ तक काम का ताल्लुक है ना, जो रूटीन के काम होते हैं उनमें मैंने कभी तफरीक नहीं की कि ये मेरा वोटर है या ये मेरा वोटर नहीं है। और जहाँ पे मेरे सपोर्टर और मेरे मुखालिफ का आपस में मुकाबला होगा, यहाँ मैं ज़ाहिर है अपने सपोर्टर को, मैं तो अक्सर एक बात किया करता हूँ, डेवलपमेंट फंड वगैरह जो है वो मैं वोटर सपोर्टर को दूँगा, बाकी कामों के लिए जो मैं दिया जी। हाँ जी, सर आप सर एमपीए पूरे 204 हल्के के होते हैं या मखसूस लोगों के होते हैं जो आपके आसपास होते हैं या जिनको आप जानते हैं? डेवलपमेंट की बात अभी आपने की, सिर्फ आप डेवलपमेंट उनको देते हैं जो आपके आसपास हैं, चाहे उनकी मर्जी है वो खेत में लेके चले जाएं, चाहे उनकी मर्जी है उनके किसी टोन में वो टफ टैले लगवा लें, सोलर लगवा लें, और बाकी लोग फिर के कहाँ जाएंगे? देखिए ये मैंने अभी बात की है कि 6 करोड़ रुपया मैंने डिस्पोजल पे लगाया है कितना बुधवाने में उसका ड्रेनेज, और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो आप ये 6 करोड़ के शहर में नालियाँ टफ टाइल सोलेंग दें, आपके बड़े बोर्ड बनेंगे, आप ये, मैंने उनको सबको यही जवाब दिया था। मैंने कहा ये एक ज़रूरी काम है, मैंने ना किया तो और मैं नहीं देख रहा कि किसी और सियासतदान ने ये काम करा है, इसलिए मैंने ये कराना ही है। एक बात, दूसरी बात ये है मेरा तो ज़्यादा फंड हमेशा इज्तिमाई प्रोजेक्ट पे लगा, जो इज्तिमाई प्रोजेक्ट में गिनाए बाकी भी गिना सकते थे अगर वो इज्तिमाई कामों पर तवज्जो देते थे, लेकिन बाकी लोग हमेशा वो अपने वही नाली सोलेंगे, अपने बंदे को एप्लाइज कर, अपने वोटर की गली बन जाए, वोटर की नाली बन जाए। हमने इज्तिमाई कामों पे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इज्तिमाई काम कराए तो वो मैंने कराए, और इसीलिए कि हम ओवरऑल खिदमत करना चाहते हैं। और ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इन पैसों को अगर इकट्ठा कर लें और नालियाँ सोलें तो पूरा कबीर वाला नाली सोल का लाग जाए ना, गड्ढड़ वास्ते इतना बच्चे हैं। और जो सवाल करना चाहता हूँ, अच्छा मियां साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने बहुत सारे तरक्याती काम गिनवाए हैं और जिनमें कुछ काम ऐसे हैं जो पिछले टेन्योर में आपको प्रोजेक्ट मिले हुए थे, जैसे कि ये हाई स्कूल ग्राउंड है, पार्क है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस टेन्योर में आपने जो अहम बातें थी, जैसे कि खानेवाल रोड था, सेफ सिटी और 2-4 चीज़ें ऐसी आपने बताई कि हुकूमत चलेगी वरना हम ये भी कर रहे थे, क्या वो 4 सालों में ये ज़रूरी काम थे, जैसे कि खानेवाल रोड भी था,
सेफ सिटी कैमरा और ये वाले तरक्याती काम क्यों नहीं हुए जो इस दफ़ा आपने किए हैं? वो तो पिछले प्रोजेक्ट के थे जो अब हुए हैं। मेरा भाई ये स्पोर्ट्स ग्राउंड पिछले प्रोजेक्ट का था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पिछले प्रोजेक्ट का नहीं। ये जो मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात कर रहा हूं, लेडीज पार्क स्पोर्ट्स ग्राउंड के साथ लेडीज पार्क भी पिछले, लेडीज पार्क और स्पोर्ट्स ग्राउंड ये वो प्रोजेक्ट हैं जो मेरे रोके गए थे। ये इस ग्राउंड टेन्योर में मुकम्मल हुए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो पिछले टेन्योर का नहीं है, वो इस टेन्योर का प्रोजेक्ट है। अस्पताल में जो वार्ड बन रहे हैं वो इस टेन्योर के तो हो रहे हैं ना कंप्लीट, कोई एक दिन में तो नहीं हो जाते। ये सब इसमें फॉलो अप का इशू है ना जी। अब वो प्रोजेक्ट बनाए गए, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन उसके बाद से अभी कबीरवाला में सड़कें बनी हैं। कबीरवाला में अगर आप शहर में आप मूव करें ना तो सड़कों के हवाले से सड़कों का कोई हाल नहीं है। सड़कें जगह जगह टूटी हुई हैं, खास पेंट्रोल मखदूमपुर रोड। फिर उसके बाद आपने इस हॉस्पिटल के लिए आपने प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया। इसमें मियां साहब क्योंकि आप फॉलो अप लेना वो भी एक अवामी नुमाइंदे का मंशूर होता है कि उसने फॉलो अप लेना, उसको मेंटेन रखना है कि खास जो मैंने प्रोजेक्ट लेके दिए इसको सही जो है इदारे वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक बार मैंने आपकी मरीज मियां साहब मुझे पॉलिसी बड़ी अच्छी लगी थी, डॉक्टर अशर जो इस टाइम मर्डर हो गए थे उनके पास आए थे और आपने महीने का उनसे फॉलो अप लिया था कि आपने क्या क्या हॉस्पिटल में किया, लेकिन वो आपका एक ही जगह था। आपने भी सब प्रोजेक्ट तो लेके दे दिया, लेकिन उसके बाद जो मेन चीज मैटर करती है कि उसका आप फॉलो अप नहीं लेते कि उसमें आया आवाम को डिलीवर हो भी रहा है कि नहीं। जी देखिए, फॉलो अप जो है ना, सिर्फ जो किडनी वाला वार्ड है उसमें गवर्नमेंट का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को बाईपास नहीं किया जाता और ना ही मैं करना चाहूँगा। उसके अब वो मशीनरी जो बाहर से आनी है जब आएगी तब लगेगी एक बार। दूसरा फॉलो अप की बात मैं आपको बता रहा हूँ। फॉलो अप मैं एक्चुअल वाक़या बता रहा हूँ। जो बॉयज़ डिग्री कॉलेज है ना, वो मैंने 96 में शुरू किया। 97 में यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था, इसलिए मैंने लड़ा नहीं जी। और 97 के बाद नहीं वो कॉलेज बन गया था और वहाँ इंटर की क्लासेस वहाँ शिफ्ट भी हो गई थी। डिग्री कॉलेज अप्रूव था, लेकिन डिग्री की क्लासें शुरू नहीं हुई थी। वही आपकी फॉलो अप वाली बात। मैं जब 2002 में इलेक्ट हुआ तो मैंने आके वहाँ डिग्री की क्लासेस शुरू की। मैं हमेशा फॉलो अप करता रहता हूँ और इसी वजह से वो जो 4 साल क्लासेस 4-5 साल नहीं शुरू हुई थी वो लेट आके फिर मैंने शुरू की। फॉलो अप उनकी पूरी पॉलिसी मेरी ना होती तो ऐसा ना होता। जी कोई और सवाल करना चाहिए? एक सवाल और मेरा सवाल है आपसे। अभी आपने कुछ देर पहले फरमाया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक किया। क्या जो बेंच बना हुआ था जिसने फैसला दिया ये आइन के मुताबिक था? एग्जैक्टली बेंच आइन के मुताबिक था। और आप अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को पढ़ के देखें, 184(3) में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में है, 184(3) सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में लिखा हुआ है कि इंटरनल मामलात में ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है बनाने का अख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। वही बेंच बनाता है, वो जो बेंच बनाते हैं वो उसको अख्तियार है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और? मैं ये सवाल कर रहा था, मतलब खालिद शफीक साहब ने भी किया लेकिन वो क्लियर जवाब नहीं मिल सका कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट शहबाज खान सियाल को मिल जाता है तो क्या मैंने जवाब दे दिया, आपको समझ नहीं आया तो आपने कहा है कि टिकट हम अगर उनको मिल जाता है तो आप उनको सपोर्ट करेंगे या अलग से इलेक्शन लड़ेंगे? आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने आपको जवाब दिया है कि टिकटों का फैसला हो चुका है, जो मैं अभी इस वक्त बयान नहीं कर सकता। आपको शायद समझ नहीं आई, सुना नहीं होगा। जी अतीक साहब, आप जो है ना वज़ीर तालीम भी रहे और काफ़ी बार मिनिस्टर भी रहे। हमारे कबीर वालों में टेक्निकल एजुकेशन का जितने भी हैं वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन जैसे
इंडिया के अंदर है वो हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना उनकी एडवांस है, आपने इस पे कोई काम नहीं किया, इसकी क्या वजह है? जनाब, आपके याददाश्त को ताज़ा करने के लिए मैं बता दूं कि मैंने ही TTC मंजूर कराया था कैफा टेक्निकल कॉलेज कफ्ता के अंदर कॉलेज, और मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों से ये जो पुरानी इंटर कॉलेज वाली बिल्डिंग थी इसकी ओपनिंग भी वो लड़के उनसे ली थी, वो देना नहीं चाह रहे थे एजुकेशन वाले, और डायरेक्टर से मेरी तल्ख कलामी हुई थी कि मैंने कहा था आपकी ذاتی मलकियत है